खान सर अस्सलाम वालेकुम। मजहर साहब वालेकुम अस्सलाम। मैंने मजहर साहब सिस्टम बदला है, कल मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। सर डिपार्टमेंट से ही ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, घर से हूं मैं और 10:45 पे क्लास है। आप दौड़म दाड़ होगी। घर से अच्छा। हूँ। एक्चुअली यू नो कि डिपार्टमेंट की हालत समटाइम्स हाँ, वो नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी एंड बैकअप सो मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके सर। 9 यू में स्टार्ट। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, sir. Good Good morning, sir. Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, sir. The participants are please be on mute. Good morning, sir. 9 Good morning, sir. प्लीज Sir, आप हम- लोग कर लें सर, please. हम शुरू करें सर। अगेन वेलकम इन दिस सेशन सर, सेकंड सेशन, and my gratitude to Professor Faiza Abbasi and Mr. Mazhar, very good friends of mine, and my gratitude to you as well for joining this program. And again, my words to you, I will be at your expectations. Friends, the topic that has been assigned to me, again a wonderful task. Please let me check. थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट किया है। जो मैंने अर्लियर क्लासेस होती थी, बहुत ही बेसिक्स अबाउट द रिसर्च मेथोडोलॉजी न डिस्कस करके, नाउ आई हैव प्लान टू डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड टॉपिक्स. Friends, it is about feasibility of undertaking research problem or project. As an academician or researcher, number of times we are having research scholars, we are having we need to submit research projects to the funding agencies, and different activities related to execute the project or research problem that I am going to discuss in this course, in this session. Again, my words to you, I will be at your expectations. Friends, feasibility word has been chosen because of many factors, and it is important to carefully consider these aspects before embarking on any research project. This is very important. So 11 points I am going to discuss in this session, and the text which has been highlighted in the green color, these are the applications developed by AI. So I will also demonstrate how to use these AI applications for your research. जैसा फ्रेंड्स कल बात हुई थी, देयर इज नो रीजन टू स्टे बैक, वी नीड टू मूव विद द डेवलपमेंट्स. अगर हमने डेवलपमेंट्स के साथ ना बढ़े तो वी विल बी ऑब्सलीट. आवर रिसर्च, आवर एकेडमिक कंट्रीब्यूशन will not be at par with the academia or Western world. So in this session, friends, I plan to
a research question or objective, how to frame the research question. One more point, we can explore how to word or reword the research problem for the research project or for the research scholar or for the dissertation as well, and frame the research questions and objectives accordingly. And Cohere is one of the AI application that can help you to an extent to do this job. ये बात हम आपसे करेंगे friends. Second point, literature review. This is very important. It has really been very important, but nowadays we are in the paradigm of cyber crime, or you can say the virtual world. We need to confirm large number of specs when you are using your text or submitting the research article or research project for the funding agencies. These have to be plagiarism free. The Research Rabbit will help you to answer number of questions in this domain. It is an AI application. Resources, a large number of resources are there. It may be human resources, it may be academic or repositories may be there. So a large number of information base I'm trying to share in this section. Expertise. Friends, before embarking into the journey of the research, we must understand our strength and weaknesses and what more we need to add on. Ethical considerations to perform the research. Methodology, friends, how the sample, how to design the survey, how to analyze the data. Wonderful application. Timeline, friends, we need to fix the timeline. We need to be systematic before moving towards our project. And challenges, impact, stakeholder engagements, and publication dissemination. So number of open AI application, as I shared with you, I'm going to share with you. Fine, friends. The first, friends, this is very important, and you need to ensure that your research questions or objective are smart. They are specific, they are relevant, they are feasible, and are to be answered within the given resources. It may be in terms of the funds, it may be in terms to the time, it may be in terms to the skill or aptitude that we have. So I'm speaking to the honorable teachers. This is very important. We must look into different aspects to our inner side, and as well as about the research scholar, what he or she can perform. So there is a need for clarity. Okay. Need to be very specific about the variables and the nature of the variables that are to be considered. What type of variable you are considering in your research title? Moderator, independent, dependent, and so on. And their flow has to be in the right direction. It has been seen number of times we failed to check this issue. Relevance, your research has to be relevant to the scholar, relevant to the institution, relevant to the funding agency, and it has to be updated. So this is a very important activity that you need to look into it. Feasibility, answering the questions within the given time, resources, and available data. Feasibility, this is the very important
keyword that I'm going to address in this session. We failed to address this issue number of times. At the onset हम ऐसी problem ले लेते हैं जो कि at last after 2, 3, 4 years there is no reason to go back and ask the research scholar to modify it, to go for minor or major changes. Actually, to my understanding, research, you are not going to make a very, very significant difference in the academia. उसके वजह ये है कि हमारे limitations हैं. Majority of we as a teacher belongs to the universities and they are having very limited resources in many ways. So the research topic has to be a learning topic. उसमें आपका स्कॉलर एंजॉय करे और उसकी लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो. अगर उस पर ओवरलोड इस तरह का हो जाएगा, यू आर ऑल्सो गोइंग टू फेल एज ए गाइड और सुपरवाइजर एंड ही इज ऑल्सो हैविंग द लिमिटेशन टू मूव ऑन. सो it will not be the right decision to move on. And as a teacher, friends, I used to ask at the onset to my students, what is your interest? If you are able to seek the interest of the researcher, trust me, the half work done. And off the record, you are seeking his or her commitment. जब commitment मिल गया तो आधा काम हो गया. So this is very important, friends. Hierarchy, friends, you need to ensure and you need to put them in order. आपका research का aim क्या है? You can write 1 or 2 or 3 aims. Then you can add on some of the objectives within the aims and organize them in a very hierarchical manner. ये ना हो कि aim कोई और है और objective कहीं और है. And accordingly define the primary and secondary objective as well. And how it is going to contribute to overall goal of the research. जिस तरह से फ्रेंड्स हम सिलेबस प्लान करते हैं कि व्हाट इज द कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द कोर्स आउटकम, accordingly we need to place these things in the hierarchical order. Measurability, each objective is measurable. ये ऐसा ना हो, देखिए फिर वही है, बार बार आई एम सबमिटिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को बहुत अच्छी तरह से समझ लें एज ए टीचर. एल्स वी आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड एट लास्ट, जो कि ठीक नहीं होगा. आप भी दाएं बाएं करेंगे और स्टूडेंट भी, जो कि हमारा एक ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहा था, वो शायद कोई दूसरा एम्बेसडर बन जाएगा. So as a smart teacher, we must try to discover ourselves. डिस्कवरी ऑफ सेल्फ साइकोलॉजी का कंसेप्ट है. नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में मैंने किया है और वंडरफुल रिजल्ट्स आए हैं इस चीज के. हम नहीं जानते हैं फ्रेंड्स कई बार अपने बारे में कि बहुत सारी हिडन हमारे पास स्किल्स हैं जिनको मौका नहीं मिला कभी यूज करने का. टाइम बाउंड, every objective has to be, every activity has to be time bound. You cannot go for the longitudinal studies in case of the research scholar, research student. It has to be limited in scope, relevance, and consistency. General tips to framing the question, friends. Avoid yes, no. Such type of data is not going to help you advance statistical techniques for answering the question. Dichotomy is there, nominal or ordinal type of scaling is there. So when you are planning to have the wonderful quality of your research, then to large extent try to make questions helping you to create the data on interval or ratio scale. The values on a continuum, large number of values on a continuum.
And some of the questions, of course, may be in the beginning about the personal background of the respondent. But in the main questions, it is suggested to avoid. Use action verbs. When stating objective, use action verbs that describe the specific actions you will take to achieve the goal. Friends, if you type the keyword in the Google, action verbs to set the examination paper, academic achievement, scholastic brilliance, aptitude, professional settings, and so many things are there. आप देखिए wonderful verbs आपको मिल जाएंगे, उनको आप यूज करिए और एक अच्छा क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए. पायलट टेस्टिंग, फ्रेंड्स, अगेन इफ पॉसिबल अपने सीनियर से, अपने कुलीग से, एक्सपर्ट से राय ले लें. वी आर अफ्रेड ऑफ, आई एम सॉरी, we are afraid of sharing our research or questions or problems to the colleague. मुझे नहीं लगता है कि हम क्यों इतना ऐसा करते हैं. मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम स्टेइंग विद द एकेडमिक्स फ्रॉम लास्ट 8 years. I was an officer with the Indian Railways, stayed there 24 years. मैं वहां से जब कंपेयर करता हूँ एकेडमिक्स को, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि जो विजन लेकर आया था कि अप्लाइड एक्सपीरियंस को लेकर हम एकेडमिक्स में ऐसा चेंज ला सकते हैं. नंबर ऑफ टाइम्स आई यूज्ड टू स्पीक बिफोर द टॉप मैनेजमेंट, तो दे यूज्ड टू से कि अरे खासा वो सरकार है और ये एकेडमिक्स है. आई एम सॉरी, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता. इसीलिए perhaps we are not the prestigious institution. I have worked with the IITs, IIMs. They are having 360-degree feedback. तो कहीं ना कहीं तो साहब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. Alignment with the research design. आपका research title guide करे कि what type of design or blueprint that you are going to create in your research. There are different types of research design. Experimental, non-experimental. This will guide you through the research title and variables under study. And it has to be suitable for addressing the research question or objective. Iteration. Understand that your research question and objective may evolve as you delve deeper into the literature and the data. Be open to revise them as needed. Friends, there is a need to play with research. मैंने तो यही सीखा है. देखिए, you must be open to address it, readdress it. आप सुपरवाइजर हैं, आप रिसर्चर हैं. You are the best person to describe the flow of your research. So this needs to be looked into. And for example, friends, इस तरह से देखिए, if I'm planning to study the impact of social media uses on academic performance, आजकल ये बहुत ही डिफरेंट पैराडाइम हो रहा है. इसको रिसर्च करने की जरूरत है. एंड यू कैन फ्रेम द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूज द एक्शन वर्ब, एग्जामिन द रिलेशनशिप, investigate the influence, assess the role of. तो बहुत वंडरफुल काम आप कर सकते हैं और कर रहे हैं. बस थोड़ा सा उसको देखिए बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम करें तो बहुत डिफरेंट होगा. Friends, now it's time to discuss one of the AI application. As I shared with you, it is Cohere, and please let me address this Cohere with you. जैसे ही आप टाइप करेंगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने ये सीन आएगा. एंड यू जस्ट सिंपली क्लिक द Cohere एंड क्लिक इट. फ्रीली अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं और आप इनको यूज करिए अपनी रिसर्च में.
and you will have a wonderful try now. फाइन. व्हाट इज स्क्वायर? ये आपको ये सामने दिया गया है और बहुत सारी चीजें हैं. देखिए आप ट्यूटोरियल इसमें देख सकते हैं. गो टू द प्लेग्राउंड. मैं इसमें जाता हूँ. देखिए चैट विद द कोरल. देखिए आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए. बहुत सारी चीजें हैं. यू कैन प्लान इट देयर. व्हाट टाइप ऑफ मॉडल यू आर गोइंग टू हैव इट. ओके. तो वो ही क्वेश्चन मैं लाता हूँ. देखिए जो मैंने यहाँ से फ्रेम किया था. लेट अस सी कि ये मेरी किस तरह से मदद करता है. देखिए मैसेज यहाँ पे लेफ्ट में. देखिए मैंने ये एंटर किया और मैंने सबमिट कर दिया. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूजेज ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन अर्बन एरिया. मैंने पहले इसकी एब्स्ट्रैक्ट जाने की कोशिश की है. देखिए इसे क्लिक कर दीजिए. देन यू विल सी वंडरफुल इंफॉर्मेशन. देखिए studies have highlighted both positive and negative impacts of this and wonderful information you are going to have it. Suggest two questions on. अब देखिए मैंने ये पेस्ट किया जो मैं टेक्स्ट लाया था. ऑन. यहां से मैं हटा देता हूं इसको. इम्पैक्ट. अब देखिए दो क्वेश्चंस मेरे लिए सजेस्ट कर देगा. इनफैक्ट रिसर्च क्वेश्चन मुझे लिखना चाहिए था. हालांकि ये स्मार्ट है. अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन उसने बना दिए. What are the common perceived negative effect of social media networks on academic performance among high school students? How do extroversion and introversion personality traits moderate the social media impact on academic performance? आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अपनी रिसर्च में. यू कैन मेक ए डिफरेंस. एंड कुछ और देखते हैं फ्रेंड्स. अगर देखिए दिस ये देखिए ये रिसर्च मेरे लिए बहुत मेरे हार्ट के बहुत करीब है. आई वर्कड ऑन द इंडियन रेलवेज ऑन दिस टॉपिक. सजेस्ट 3 रिसर्च क्वेश्चंस ऑन लेटरलिटी एंड एक्सीडेंट प्रोननेस. अब देखिए हम क्यों नहीं, व्हाई वी आर अफ्रेड ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी जो कि हमारे लिए बहुत एटलीस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग हम तो नहीं कर सकते हैं बट वी नीड मोर टाइम. देखिए डू लेफ्ट हैंडर्स हैव मोर एक्सीडेंट देन राइट हैंडर्स? दिस question investigate the theory that left-handers susceptibility to accident injury is greater than that of the right-handers. Implication आपको गाइडेंस भी मिल गई. तो फ्रेंड्स बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है. बहुत सारे इसके एक्टिविटीज हैं और फ्रीली अवेलेबल है. जितना आप कर सकते हैं. उसके बाद लेटर ऑन यू कैन सजेस्ट योर organization to go for the membership. तो पहला जो एप्लीकेशन था फ्रेंड्स that I planned number of questions. अब जैसे यही examine the relationship between, investigate the influence. देखिए ChatGPT वगैरह उससे भी बेहतर इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा. और these application I have been using from many months and अब देखिए लिटरेचर मुझे मिल रहा है. देखिए 2019 में मथुरा एंड they suggested for future research questions as well.
लिटरेचर रिव्यू आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, important research articles related to this topic. So many things can be addressed by such applications. So मेरा मशवरा यही है, please do not afraid to use these applications, and you are going to have the wonderful journey in days to come. Okay, friends. Now moving to the second activity, literature review. Conduct a thorough review of existing literature to identify gaps in the knowledge, very important. Define the scope and purpose of your research. Even I just skipped framing, reframing, and different versions of the research title. आप देखिए आपके कोलीग्स या फंडिंग एजेंसीज इस तरह से सोचेंगी कि यार वर्ड्स कहाँ से लाए गए हैं. Define the scope and purpose of your research. Develop a search strategy. Relevant keywords. देखिए, whenever you are using AI applications, it is suggested to submit the strong keywords. आपको नहीं लगता है जब हम दो लोग जब बात करते हैं तो सामने वाला परसीव कर लेता है कि हमारा क्वेश्चन का लेवल क्या है, अकॉर्डिंगली हमें रेस्पॉन्स मिलेगा. इसी तरह से एआई भी परसीव करता है कि फ्रेमिंग ऑफ द कीवर्ड्स और आस्किंग द क्वेश्चन हमारा लेवल क्या है. तो स्ट्रॉन्गर इज द कीवर्ड्स, स्ट्रॉन्गर इज द क्वेश्चन, एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द आंसर. हम इसको हल्के नहीं ले सकते. इट इज ए साइंटिफिक बेस. The text that you are going to use for your research, it is permissible limit of the plagiarism, less than 10% or 2% or 5%. मैंने तो बहुत सारे काम इसको लेकर कर रहा हूं, मेरे रिसर्च स्कॉलर्स कर रहे हैं. Staying with 8 years with the this academics friends, 12 PhDs under my supervision have been awarded, and hundreds of PhDs में I have been instrumental. मैंने बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं किया है, लेकिन एक पैशन था और है, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू यूज द टेक्नोलॉजी. आप ही की तरह से हूं, लेकिन बस एक कोशिश है कि हम शायद कुछ अलग कर सकें, डिफरेंट कर सकें. आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट सोर्सेज. कहाँ से आप रिसर्च को लेने जा रहे हैं. पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, रिप्यूटेबल वेबसाइट्स हैं. इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या रहेगा लिटरेचर रिव्यू के लिए. सिस्टमेटिक सर्च एंड रिट्रीवल. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, दे कैन हेल्प यू. Organize and manage resources and note. Zotero, Mendeley are there. Whatever you are searching, you are placing there, storing there, and finally, you need to decide which reference, which research article to be quoted in your research article or thesis. यही काम हम गूगल पर करते रहे. When you are searching a keyword, then you will have millions of pages. It's very difficult to go through them. Such type of applications are intelligent applications. They are going to give you the relevant information which is really useful to you. Quality of sources. Sometimes it has been reported the information given by the AI applications are not correct. It is we to decide. इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमें बनानी पड़ती है हर जगह. Some of the applications are beta versions. They are developing. They are not updated. That we need to extract key information, synthesize the literature, identify the gaps,
This is a crucial step in your research. You will be able to justify the rationale. Chat doc can help you to go for the research. This literature review, chat doc. गूगल बर्ड की तरह से गूगल जेमिनी अब हुआ है. Provide critical analysis, strength and weaknesses of the study. You need to go for meta-analysis. हम quality work के लिए वक्त लगाएं. The work which is monotonous and repetitive in nature, वो हम टेक्नोलॉजी से कराएं, such type of application से कराएं. Cite sources, which type of source you are going to report your material. Revise and update literature review. Sometimes कुछ contradictory findings होती हैं, and you need to report it, update them. Friends, the interpretation of the statistical results has really been misunderstood in many ways. Always, why we are interested to go for the significant results? The correlation between X and Y is positively significant. If it is not significant, after working 3 years or 3 and 5 years or 4 years, this is also a research. If your methodology is sound, if you have placed all the prerequisite riders for collecting the data, screening the data, using the right statistical test, then the interpretation of the non-significant result is as good as significant result. Please never afraid reporting the non-significant results. It is your contribution, and you need to justify in reference to the measuring device, target population, and sample studied. You need to report it. Seek the feedback. Upload it to the academia, your ResearchGate or similar social media platforms, and request for the feedback. Your research has to be shared with the public domain. आपका एफर्ट जाया नहीं होना चाहिए. नेशनल कंट्रीब्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन है, आपने वक्त लगाया है. इट हैज टू बी शेयर्ड विद द यूजर्स, तभी सब कुछ आएगा. हम और आप सुबह से शाम जो कोशिश करते हैं कि टाइम से क्लास में पहुंचे, ट्राई टू शेयर ऑल द नॉलेज दैट वी हैव एक्वायर फ्रॉम वन वे टू अदर वे, कि बच्चों को हम एक बेहतर सिटीजन बना सकें. हम वही कर रहे हैं. सो दिस इज वंडरफुल कंट्रीब्यूशन. आपने और हमने सबने देखा कि कोविड के दौरान थालियां बजाई गई, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशंस थे, लेकिन शायद हमारे लिए नहीं थे वो. हमने जनरेशन गैप को मिनिमाइज किया. हमने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के कैरियर को दाव पे लगने से बचाया. So of course there is no need for any certification. Honestly, we are discharging our duties. Friends, the second application which I planned with you, Research Rabbit. It is another open AI application. My gratitude for your appreciation. Research Rabbit बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और इसको देखिए हम किस तरह से यूज करते हैं. प्लीज लेट मी अलाउ टू गो फॉर द रिसर्च रैबिट. आप टाइप करिए एंड यू विल हैव द रिसर्च रैबिट AI.
login. Perhaps I skipped the password. Let me check it. I forgot the password. ओके, दोबारा हम चलते हैं साहब, हम दूसरे नाम से लेते हैं, परहैप्स वो वार्निंग देगा हमें। मैं लॉगिन करता हूं दूसरे नाम से एंड पासवर्ड हम दें सर। Has already been signed in. I was afraid I forget the password. Just let me please. I'm trying to recall the password. Sir, while you're looking for your password, I just have a very short question. There are many तो times. परेशानी हो रही है कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। Research Rabbit, it is the password. SM Khan @240. Okay, let me close it now. SM Khan. Got it. So this is a wonderful application, friends. For example, we need to go for the new collection. Let me this you can write the 20, the new collection, and all the research or the research articles related to this will be add on here. Add the papers and type the name of the papers that you plan to look into. So if you go back to the some of the papers that you have already included into your research, let me check it. I have perhaps this. This is, I wish to examine this research paper.
go to the type over here. You can type the title DOI and so on, and now search for it. अब किस प्रोवाइडर्स के थ्रू करना है? लेट इस मूव इन सच ए फैशन, नो रिजल्ट इज फाउंड। ऑल में हम जाते हैं तो देखिए ऑन में मिल जाता है। दिस इज माय रिसर्च पेपर। आईआईटी कानपुर के साथ प्रोफेसर हैं प्रोफेसर ब्रजभूषण साहब, उनके साथ ये मेरा पेपर था, 2006 में पब्लिश्ड हुआ। सो ऐड टू द कलेक्शन, मैंने देखिए इसको कलेक्शन को ऐड कर लिया। पेपर 1 हैज बीन एडेड। फाइन। इसी तरह से और भी आप सर्च कर सकते हैं। एंड और यहाँ से आपने क्लोज किया। अब देखिए ये पेपर आपका यहाँ पे आ गया है। आप इसे डबल क्लिक करिए तो आपके कंप्लीट यहाँ पे इसका एब्स्ट्रैक्ट है। और सिमिलर वर्क डन बाय 927 researchers, and this paper has been referred into the 42 and cited by the 22. ऑल साइटेशंस अगर देखें तो आपको सब मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे किस, देखिए ऑथर ने, किस पब्लिकेशन ने, पब्लिशर ने आपके रिसर्च पेपर को साइट किया है। ए वंडरफुल एप्लीकेशन विच कैन हेल्प यू टू मूव एज ए रिसर्चर। टाइमलाइन के साथ देखें कब कब आप किया है। देखिए 7 में 2006 में पब्लिश हुआ था हमारा, और यहाँ से लिंक देखिए किस खूबसूरत लिंक आ रहा है। 7 में, 10 में, 13 में, 16 में, 19 में, 22 टाइमलाइन। फाइन। एंड द फर्स्ट ऑथर यू कैन गो फॉर, देखिए ऑथर का नाम आ गया है यहाँ पे। ओके, आप इस तरह से कर्सर लाइए तो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, जो कि वंडरफुल एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, बहुत सारे एड अदर कलेक्शंस और भी आप ले सकते हैं इसमें पेपर्स, और भी पेपर्स आप ऐड कर सकते हैं। देन अगेन यू गो बैक टू द दिस ऐड पेपर्स, अगेन आप सर्च करिए रिलेटिव एंड एक्सीडेंट प्रोनेस। देखिए और भी रिसर्च है, आप इसको ऐड कर लीजिए और देखिए। और माय पॉइंट इज दैट कि सिमिलर रिसर्च एक सही मायने में आपको एक मकसद मिल पाएगा, जो कि शायद अर्लियर नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट सारे अवेलेबल हैं, सारे रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। नाउ यू आर हैविंग दीज 4, 5, 6 पेपर्स। Sir, एक्सीडेंट प्रोनेस देखिए, वंडरफुल। sir, I have a question. Can I ask? Please stay back, ma'am. I will back to you. Okay, sir. So this is one of the very important application that you need to use as a researcher. Friends, I'm open for the feedback. This class I have planned first time. However, from last 4 or 5 years, repetitively I was using the research methodology, different activities, different research designs, different statistical test. मुझे लगा कि वो चीज़ें बहुत ही रिपीटेटिव इन नेचर हैं, एंड आप ये सब कर सकते हैं और करते आए हैं। इसीलिए मैंने इस सेशन को और इस मटेरियल को डेवलप किया। However, earlier I have seen a very nice feedback from the participants that this needs to be taken care of in days to come. Okay, friends. रिसर्च रेबिट में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मेरा सबमिशन यही है आपके साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि प्लीज नेवर माइंड कि मैं नहीं कर सकता या मेरे पास लिमिटेशन है। वंस यू हैव ए विजन देन यू कैन मेक ए डिफरेंस। आप गूगल में सिर्फ इतना डालिए, रिसर्च रेबिट वीडियो फॉर बिगनर्स। 5 मिनट का वीडियो देखिए कि रिसर्च रैबिट को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। फिर देखिए चीजें किस तरह से आपके लिए आगे दौड़ती हैं। मत बैठिए क्लासरूम में, मत जाइए किसी एक्सपर्ट के पास। यू आर द एक्सपर्ट ऑफ योर डोमेन।
ट्रस्ट मी, आई एम सेल्फ प्रोपेल्ड, मैंने खुद किया है ये सारी चीजें और मुझे रिजल्ट मिले हैं। ऐसा नहीं है कि साहब हम सिस्टम पे बैठ रहे हैं तो मेरी स्पाउस को मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा या मेरे बच्चों को नहीं दे पाऊंगा। सर अगर आप ये कहीं ना कहीं अपना पैशन बनाते हैं तो द गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, और एक माहौल बनता है घर में भी। Thanks God, I am blessed. My daughter is working in Brussels, Belgium. She is responsible for selection of chief executive officers for the industry. Son is working in Amsterdam, Netherlands as a senior business intelligence engineer. And जो मेरी बहू होने वाली है उसने MIT USA से MBA किया है, मेरे बेटे के साथ ही किया था, लेकिन 3-4 साल से वो लोग बात कर रहे थे। Now they have decided to move all together. प्लीज फॉरगिव मी। ये सारी बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप सब के बच्चे भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल की जरूरत होती है। और अगर इस तरह का पढ़ने पढ़ाने वाला माहौल अपने घर में आप इंश्योर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक ए डिफरेंस। एक अच्छा पैकेज बनेगा। और माहौल बनाने का जिसे सलीका न हो उसे माहौल सजा देता है। इन्वायरमेंट तो सब आपको बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थर्ड एक्टिविटी है फ्रेंड्स रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। लाइब्रेरी रिसोर्सेज, बुक्स, जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस किस तरह के हैं, रिसर्च टूल्स आपके पास किस तरह के, ये सारे अगर आप देखें तो ओपन वेयर्स हैं, फ्री वेयर्स हैं। जहां तक ऑनलाइन की ये बात आते हैं आप इनकी यूज करें। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क योर इंस्टीट्यूशन टू मेक इट पॉसिबल, क्योंकि इसके बगैर तो अब चीजें नहीं चल रही हैं। रिसोर्सेज, रिसर्च फंडिंग। देखिए हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि बहुत 8,000 रुपए जो यूजीसी की स्कॉलरशिप है उसी पे 6-6 साल 5-5 साल तक हमारे स्कॉलर्स जमे हुए हैं। डिस्करेज करिए उनको। सारी पीएचडीज मेरे मिनिमम टाइम में सबमिट हुई हैं, और ट्रस्ट मी आउट ऑफ 12 9 आर वर्किंग एज ए क्लास 1 ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर्स और काउंसलर्स। क्वालिटी आप इन्फोर्स कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस यू नीड टू बी सिस्टमेटिक। थोड़ा हार्ड टाइम तो देना पड़ेगा, हम घर में भी तो बच्चों को देते हैं तभी तो ये रिजल्ट आता है। मुझे खुद मिला, मेरे फादर ने, माय फादर रिटायर्ड एज ए मलेरिया इंस्पेक्टर। आई नो कि किस तरह के उनके स्टैंडर्ड्स थे। सो फ्रेंड्स, आई एम स्पीकिंग टू माय कोलीग्स, देयर इज अ नीड टू प्लेस द चेक पॉइंट। लेबोरेटरी फैसिलिटीज क्या है आपके पास में? कई बार मैंने देखा है कि आप रिसर्च प्रॉब्लम इस तरह की प्लान करते हैं कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आप खरीद लेंगे, आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पहले इन चीजों को जुटाइए, तब आप रिसर्च अपने हाथ में लीजिए। डेटा कलेक्शन टूल्स फ्रेंड्स, सर्वे मंकी इज वंडरफुल एप्लीकेशन। गूगल फॉर्म्स आप यूज करते आए हैं। Interview or focus group, statistical softwares friends, this SPSS I have been using from 1986, जब बहुत ना के बराबर PCs हुआ करते थे। सॉफ्टवेयर तो आप भूल जाइए। I was working in ICMR, so we used to have the roster for half an hour in a month only, एक महीने में आधा घंटे के लिए मिलता था। So these are the proprietary softwares. R is freely available, SAS, and these are the proprietary softwares. Never mind कि मेरे पास ये नहीं है। I'm going to demonstrate one of the application, Jamovi. It is the free openware application. Wonderful analysis, एक research के level की सारी analysis इसमें हो जाएगी। Ethical review board and so on. Collaboration tools. You are connected to the academia, you are connected to the world. जब भी मौका मिले इस तरह की सेटिंग्स में आप बैठेंगे, अटेंड करेंगे। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शंस होंगे। लाइब्रेरियंस, रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज आपको मिले। ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप अटेंड करिए। वंडरफुल। देखिए जिंदगी एक बार मिली है, इसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है।
a large number of courses are being offered by the topmost world academic institutions. MOOCs courses are there. आधा घंटे 1 घंटे के लिए आपको क्लास अटेंड करनी है, विद इन अ मंथ और सो यू विल हैव द वंडरफुल सर्टिफिकेट. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने की एक तमन्ना पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वी कैन गो फॉर द ऑनलाइन. हिंदुस्तान में हमारे यहाँ नंबर स्वयं बहुत बड़ा काम कर रहा है, मेरे नंबर ऑफ कोर्सेज चल रहे हैं. सो दैट यू नीड टू वर्क ऑन, यू नीड टू थिंक फॉर इट कि आप किस तरह से एकेडमिया में अपने को पाते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं. फ्रेंड्स, ये थर्ड वन एप्लीकेशन ओपनवेयर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एंड प्रोवाइड्स ए कंप्लीट सूट ऑफ एनालिसिस दैट सोशल साइंसेस जो रिसर्च में यूज करते हैं. टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, chi-square test, reliability and factor analysis, all is possible using this application. पता नहीं हम क्यों नहीं कर पाते हैं. Okay, let me मैंने इसको इंस्टॉल किया है, आप इस साइट से डाउनलोड कर लेंगे, and perhaps let me check it. I have installed over here. ये मूवी वंडरफुल एप्लीकेशन है, और आप देखेंगे इट इज द ट्रू कॉपी ऑफ SPSS. सारे काम, सारा इसका कस्टमाइजेशन, सारी चीजें बिल्कुल SPSS की तरह से हैं. मोर देन 40+ सेशंस मैं इस पे दे चुका हूँ, और यू विल आल्सो हैव द इम्प्रेशन वेरी वेरी. अब नाउ सी द वेरिएबल, यू नीड टू डिफाइन द वेरिएबल. डबल क्लिक आप यहाँ पे करिए और यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर दीजिए, ID. दूसरा मान लीजिए जेंडर, बस एज. थोड़ा देर फिर पढ़ना बैठ के जाओ. जेंडर में यू कैन गिव द लेबल्स हियर. मैं क्या कर लेता हूँ ना. हाँ, तो ये सब अपने 2 मिनट विशाल सर म्यूट कर लीजिए स्पीकर. 2, देखिए लेबल्स आ गए. फाइन. और नाउ एंटर द डेटा. आप डायरेक्टली फाइल भी यहाँ पढ़ सकते हैं. एक फाइल मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा. देखिए डेटा मेरा एंटर हो गया है. अब गो टू द एक्सप्लोरेशन. आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखिए, बिल्कुल SPSS की तरह से. मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता साहब. एज को देखिए, इधर ले लीजिए, देखिए सारी आपको स्टैटिस्टिक्स मिल गई. स्प्लिट बाय जेंडर अगर लेना है तो देखिए जेंडर आ गया. क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है देखिए, जस्ट SPSS की तरह से जैसे क्लिक करते हैं आप, यहाँ सारी चीजें कर लीजिए. फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी भी आ गई कि 25 की एज ग्रुप में देखिए. हाँ, हर चीज आपको मिल रही है. और क्या चाहिए सब. प्लॉट में आ जाइए, देखिए हिस्टोग्राम लीजिए, जस्ट क्लिक कर. देखिए, हालांकि कोई वजह नहीं है क्योंकि वेरिएबल का सिलेक्शन मेरा स्प्लिट नहीं होना चाहिए इस केस में. देखिए सर, हिस्टोग्राम आपको मिल गया. क्या पॉसिबल नहीं है. ओके, मैं अब आपको देखिए एक ओपन डेटा करके, हर तरह का डेटा ये सपोर्ट कर रहा है. ब्राउज किया मैंने और डेटा मैं देखिए एग्जिस्टिंग डेटा मैं ओपन करता हूँ. मैं तो सब बहुत एक्साइटेड हूँ इस तरह के एप्लीकेशन को यूज करके. अब तय आपको करना है कि आप किस तरह की चीजों को टेकअप कर रहे हैं. टीचिंग कोर्सेज शायद मैंने कहाँ रखा है, परहैप्स इट में भी है.
मैंने डेटा कहाँ पे रखा है, लेट मी डेटा सेट। देखिए एसपीएसएस, देखिए ऑल डेटा फाइल्स आर अवेलेबल टू यू। मत जाइए एसपीएसएस के लिए, देखिए सारी चीजें इसमें पॉसिबल हैं, तो हम क्यों नहीं यूज कर सकते। कोई भी डेटा मैं लेता हूं, परहैप्स इट मे बी द एम्प्लॉय डेटा मैंने लिया, ओपन किया। देखिए पूरा एसपीएसएस का डेटा आ गया मेरे पास। इट हैज 474 केसेस। एक्सप्लोर करता हूं साहब, और इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव एंड आई विश टू जेंडर का मुझे फ्रीक्वेंसी अगर लेनी है, फ्रीक्वेंसी टेबल देखिए, ये फ्रीक्वेंसी टेबल मेरे पास आ गई। टी टेस्ट के लिए मैं चलता हूं साहब, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। मैं सैलरी बिगनिंग एज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेंडर एज द ग्रुपिंग वेरिएबल। नाउ सी द रिजल्ट्स। ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गई, ये आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गई, एंड पी इज लेस देन। बहुत सारी देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इफेक्ट साइज आप कंप्यूट करा लीजिए कोहेंडी। क्या नहीं पॉसिबल है सब। आप बहुत सारे एजम्पशंस यहाँ ले लीजिए। नॉर्मलिटी टेस्ट, मैं तो एसपीएसएस से बेहतर इसको रेटिंग दूंगा। देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन देखिए आते हैं सब। आई विश टू प्रिडिक्ट करंट सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ बिगनिंग सैलरी। अब देखिए देखिए मॉडल फिट बन गया, आर स्क्वायर की वैल्यू। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मॉडल बिल्डर्स, क्या क्या चीजें चाहिए आपके मॉडल फिट में, क्या क्या चाहिए। एफ टेस्ट आपको चाहिए, एडजस्टेड आर स्क्वायर चाहिए, मॉडल कॉफिशिएंट्स देखिए, स्टैंडर्डाइज कॉफिशिएंट चाहिए, इंटरवल चाहिए, एनोवट। इस क्या चीज नहीं है साहब। मैं तो उससे बेहतर इसको रेटिंग दूंगा, एसपीएसएस से बेहतर, फ्रीली अवेलेबल। फैक्टर एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस, पीसीए, ईएफए, सीएफए, हर चीज है। I think I'm not getting any appreciation for this type of knowledge. I'm speaking to the teachers. Trust me, ये ऐसा कंट्रीब्यूशन है एकेडमिया के लिए और रिसर्चर के लिए कि आप मत आस्क कहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या साहब मुझे एसपीएसएस दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। नो, दैट यू कैन डू दिस। सारा आउटपुट आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इनटू द डिफरेंट फॉर्मेट। आप यहाँ पे जाइए एंड एक्सपोर्ट, जो भी आपके रिजल्ट हैं वो एक्सपोर्ट करके ले जाइए डिफरेंट फॉर्मेट में। ओके, सो this is all about this part of the discussion. Now moving ahead, Jamovi, expertise friends, before embarking to the journey of research, हम इस बारे में जाने कि हम हमारे स्ट्रेंथ क्या है। देखिए फिर वही वाली बात है कि बिल्कुल मैं भी बहुत शाई था कि परहैप्स एकेडमिया को मैं कैसे फेस कर पाऊंगा। और when I try to innovate myself slowly, then I am of the opinion, yes, I can do this. So when more you innovate yourself, more you love yourself. और इस तरह की चीजों को टेकअप करिए। और एक सरप्राइजिंगली थोड़ा सा मैं चेंज चाहता हूँ। व्हेन आई वाज appearing for the before the selection committee for the post of professorship, and one of the experts from Delhi University asked me, Dr. Khan, how it can be possible in 6 years you developed 18 psychological tests, standardized and published. In 35 of years of the tenure, मैं एक भी नहीं कर पाया। So I reacted to the honorable expert कि sir, you know
I love to play with numbers. And when you torture the numbers, they will confess. और सब मैंने यही देखा है. तो एक्सपर्ट साहब हंसे और उन्होंने वाइस चांसलर साहब को कहा कि सर, आई नो डॉक्टर खान फ्रॉम लास्ट 20 years when he was working with the Indian Railways. We used to visit their to audit their research as an expert committee members nominated by the ministry. तो ये चीजें सर जरूर कहीं ना कहीं आप तोलिए और अपने को कभी अंडरएस्टिमेट मत करिए. यू कैन मेक ए डिफरेंस. क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कभी वक्त मिला तो बहुत जरूरी है सर. IBM SPSS ने बहुत वंडरफुल एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं. टेक्स्ट एनालिटिक पैकेज करके है, जो कि मैं बहुत उस पर काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग एज एन कंसल्टेंट टू द यूपी पुलिस, और उनके लिए हमने बहुत अच्छे काम किए हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस को किस तरह से एनालाइज किया जाए, और वंडरफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. कभी वक्त मिला तो सब इस मामले में बात करेंगे. इथिकल कंसिडरेशंस रिसर्च में क्या होने चाहिए, दैट यू नीड टू टेक इन केयर ऑफ लिटरेचर रिव्यू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा कलेक्शन, data interpretation and communication. Data interpretation, very important. For example, you applied independent samples t-test for a data set. Write a keyword into the Google independent samples t-test SPSS output interpretation. सारी टेबल्स, सारा इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा. वहां से समझिए और वहां से अकॉर्डिंगली आप अपने आपका जो डेटा सेट है उसमें उसका इंटरप्रिटेशन देके अपना रिसर्च आर्टिकल या अपना थीसिस सबमिट कर दीजिए. सब हम ब्लेम नहीं कर सकते कि साहब मुझे क्लासरूम सेटिंग्स में या मेरे टीचर ने या मेरे गाइड ने ये नहीं बताया. नो, ये कोई वजह नहीं है. रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल पे हैं. यू नीड टू यूज देम एंड यू नीड टू मेक ए डिफरेंस. सब मैं कल का भी पीपीटी और आज का भी दोनों आपसे शेयर करूंगा. मिस्टर मजहर विल बी देयर टू शेयर ऑन द व्हाट्सएप. और ये सारी मटेरियल आपके पास रहेगा. प्लीज गो थ्रू इट एंड यूज इट फॉर betterment of your research. Ethical considerations, sir, सुनिए, very important, especially for the social sciences. Informed consent बहुत जरूरी है, confidentiality बहुत जरूरी है, privacy of the respondent information, whatever you are seeking the information, you need to ensure that, and तभी आपको एक सही data set मिल पाएगा. वरना बहुत प्रॉब्लम्स होंगी साहब. इन सोशल साइंसेज देयर इज this is one of the issue for the in the data, how to have the real information from the subject when you are ensuring them, when you are declaring them कि we will take care of your all information and nothing will be shared to anybody. This is for research only. You will have the wonderful information. Minimize the use of deception in research. बहुत जरूरी है. It is justified that the participants are fully debriefed at the conclusion of the study. Some limitations होते हैं हमारे research में. Whatever the research we are having, it is the property of the academic institutions or other bodies, but they never ask you to stay back, not to publish or not to share the findings, that you can go for it. Transparent reporting होता है साहब. कौन देख रहा है कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आया, 0.06 आया है, पी की वैल्यू 0.05 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहब. आपकी थीसिस में न पढ़े, आपके डिसर्टेशन में न पढ़े, लेकिन हमेशा यू विल बी डाउन विद द गिल्ट फीलिंग, आई डिड दिस. अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल ना बनाएं साहब. एक छोटी सी एक अचीवमेंट के लिए हम हमेशा के लिए अपने को डाउन कर रहे हैं. मेरा एक रिसर्च स्कॉलर स्टडी कर रहा है गिल्ट, शेम
एंड रिमोर्स, तीनों सोशल इमोशंस इतने वंडरफुल हैं कि कब आदमी को गिल्ट फीलिंग होती है, कब शेम होती है, कब रिमोर्स होता है, और रिजल्टिंग उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये इतना डेंजरस इमोशंस हैं साहब, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन दिमाग से नहीं जाता कि यार वो मैंने ऐसा किया था। प्लीज नेवर अलाउ टू डू दिस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करें, रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट होना चाहिए। यू आर ए रिसर्चर, you need to respond in an honest manner. आप मेरे बारे में देख ही रहे होंगे, यू आर द राइट पर्सन टू जज मी। नंबर ऑफ टाइम्स माई सीनियर्स यूज टू लेबल मी कि अरे खान साहब आप तो ऐसे हैं जो जानते हैं सब कुछ, आप शेयर कर देते हैं। मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि एक टीचर का के पास क्या होता है छिपाने के लिए। और अगर सामने वाला कोई चैलेंज बनता है तो वो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन को लेके बनता है तो बने यार, बट वाई शुड आई इन्वॉल्व इनटू द नेगेटिविटी कि मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं करना है शेयर। आपने देखा होगा पूरी क्लास में कई बार मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किए, अपने बच्चों के अचीवमेंट शेयर किए, अपने शेयर किए। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमें वैलिडेशन मिलता है इस तरह की चीजों से। Approval from ethical review boards, whatever you are doing, you are going to fair treatment, care for vulnerable population, community engagement, data management, authorship and acknowledgement, continuous monitoring, methodology, छठा point, very important सब। research design किस तरह की होनी चाहिए। in fact it is the blueprint of your research। AI आपको बहुत मदद करेगा। आप रिसर्च टाइटल लिखिए और उससे पूछ लीजिए व्हाट मे बी द सूटेबल रिसर्च डिजाइन फॉर रिसर्च दिस रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए साहब करके देखिए, यू विल हैव अ वंडरफुल आउटकम। हाउ टू सिलेक्ट द सैंपल, different methods are there, statistical softwares are there to select the sample. Your sample has to be representative to the population, तभी आप अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर पाएंगे, वरना your study will be limited to the sample only। तो ये तो थोड़ा नुकसान का मामला है सर। methodology has to really be very sound। डेटा कलेक्शन कैसे करना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स देयर हैज बीन ए प्रैक्टिस कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड टू मेजर द मोटिवेशन, motivation is a very very generic construct, but it is different in case of a child, in case of an adult, in case of middle aged, and in case of senior citizen। construct वही है लेकिन it is different in all different 4 populations। So when you are planning to use a test which has been developed on adult population, how you can use it in case of middle-aged respondents or senior citizens or child? No. That you need to learn how to take care of this issue। हमेशा रिसर्च में हम टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते, टू लार्ज एक्सटेंट जो डेवलप होता है हम उसी को यूज करते हैं। दिस इज द सिनेरियो दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट। डेटा एनालिसिस प्लान करें साहब, और बहुत आसान है। 3 क्वेश्चंस आप पूछिए डेटा एनालिसिस से पहले। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू यू हैव इन योर हैंड। टाइप ऑफ डेटा, किस तरह का डेटा है आपके पास। इट इज ऑफ 2 टाइप, qualitative and quantitative। If the data is qualitative, then you are having limitation of the statistical test। आप proportion compute करेंगे या percentage compute करेंगे, and accordingly limited statistical tests are there, non-parametric। And when the data is continuous, you can say the quantitative in nature, then you have large number of tests over there। So the first question, what type of data do you have in your hand?
qualitative or quantitative. Second question, how many samples you have? नॉर्मली सैंपल एक ही होता है, लेकिन सैंपल कैटेगराइज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ प्री एंड पोस्ट, बिफोर एंड आफ्टर. So if you are having one sample, then you will go for, if you are planning, you have a different test. If you are having two samples and if they are independent, you have a different test. Again, if you are having two samples, they are related or dependent, you have a different test. And if you are having more than two samples to compare, then you have a different test. So how many samples do you have? Second question. Number third, what test supposed to do? Statistical test है, आप क्या कराना चाहते हैं? यहाँ भी दो ऑप्शन है आपके पास. Either you will go for comparison, comparing independent samples or paired samples or among samples, or you will go for examining the correlation or regressions and so on. इन तीन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, सारी स्टैटिस्टिकल टेस्ट का पोस्टमार्टम आपके सामने हो जाएगा. देयर इज ए वंडरफुल चार्ट, मैं अक्सर प्रोग्राम्स में डिस्कस करता हूँ. आई हैव डेवलप्ड अलोंग विद प्रोफेसर राजीव पांडे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, वंडरफुल चार्ट. कभी वक्त मिला तो, या मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लाइक करेंगे तो मैं इसी पीपीटी में अपेंड कर दूंगा. इट विल गाइड यू एंड प्रिंट करके आप अपनी डेस्क पर लगा लीजिए. यू नीड नॉट टू गो टू द स्टैटिस्टिशियन. आप खुद ये सब हम मैच्योर टीचर हैं, एकेडमिशियन हैं, दैट वी कैन मेक ए डिफरेंस. वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी फ्रेंड्स, क्योंकि सोशल साइंसेज में देखिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है. देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मेजरमेंट्स एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स. ह्यूमैनिटीज के या साइकोलॉजिकल जो मेजरमेंट्स होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं. टू इंश्योर दिस लिमिटेशन वी नीड टू गो for the standardization of our instrument or scale. And there are 5 characteristics of a standardized test: objectivity, reliability, validity, norms and practicability. तो जब भी टेस्ट आप अपनी रिसर्च के लिए यूज करें, उसकी ये प्रॉपर्टीज एग्जामिन करें. And if it has been developed on a different population and you are using it on a different population, then you need to go for confirmatory factor analysis, CFA करें साहब, और वहां पे जो डायमेंशन या जो आइटम मिसबिहेव कर रहा है उसे निकाल दें. निकालने के बाद जो टेस्ट बनेगा वो अडेप्टेशन एक्सरसाइज होगा. ऑथर को आप बताइए और उसके बाद उसको आप यूज करिए अपनी रिसर्च में. टाइमलाइन, रिसर्च टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट साहब. चीजें हवा में नहीं हो सकती, यू नीड टू फिक्स द टाइमलाइन. बजट, लिमिटेशंस, कंक्लूजन्स एंड अपेंडिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपने किया है. And the last application, friends, that I wish to share with you, it is about SurveyMonkey. Let me check it if we can work on it. थोड़ा सा SurveyMonkey. It is AI application which can help you to create your online surveys and wonderful discussion and analysis from the data set itself. गूगल फॉर्म से बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत ही साइंटिफिक बेस है. एंड 20 million questions answered daily. Just look into it. You can go for the survey. Sign up for free.
गूगल के थ्रू चलते हैं सर। पहले हम अपना मेल आईडी दे देंगे। थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर सर मैं आपको दे पा रहा हूँ, एंड you can go for the create a new account or existing account. फिर वहीं आ गए हम। एनीवे मैं भूल जाता हूँ पासवर्ड। हाँ, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है साहब, इसको आप यूज करिए। और मैं शायद इस पर ज्यादा वक्त नहीं क्रिएट ए न्यू अकाउंट अगर हम लाते हैं यहाँ पे, तो लेट अस थिंक फॉर इट। बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है, और आप इन्फोर्स करिए अपने स्कॉलर को, बताइए यस यू कैन डू दिस। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच देखिए, और सर्वे का नेम दे दीजिए सर। favorites, copy question and answer from the doc, create। आप ऑलरेडी जो क्वेश्चन वहां से कॉपी कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये आपके लिए क्वेश्चन बना देगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन इज 5 suggested questions। देखिए व्हाट इज योर एज। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया मेरा, कॉपी कॉपी क्वेश्चन। देखिए दूसरा बन गया, इसको थोड़ा एडिट कर दीजिए सब, यहाँ पे चेंज ला सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ओके, कैंसिल एडिटिंग, इसको डिलीट कर देते हैं साहब। न्यू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया, न्यू क्वेश्चन आप लीजिए। नया क्वेश्चन आ गया, आपका जेंडर क्या है। मल्टीपल चॉइस, किस तरह का, यस नो चाहिए, या देखिए सारी चीजें हैं दैट यू कैन फिक्स ओवर हियर, जो कि वहां पे नहीं मिलती थी आपको। ओके, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं चॉइस, मेल। बन गया सब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीव्यू सर्वे, देखिए यहाँ पे आ जाइए। देखिए आपका क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज योर एज। रेस्पॉन्सेज आपको मिल जाएंगे, you can preview it in and you can, wonderful application। so my just exposure before you के चीजें आपके सामने हैं, बस उनको यूज करना है या कराना है। टाइमलाइन बहुत जरूरी है साहब, यू नीड टू बी वेरी सिस्टमेटिक। जैसे कल मैंने आपसे बात की थी कि एज ए स्टेक होल्डर वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज। जो भी हम टास्क करें वी नीड टू बी सिस्टमेटिक। अगर हम टाइमलाइन नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा सर। गैंट चार्ट कैन हेल्प यू इन दिस डायरेक्शन, एंड इस तरह से देखिए द एक्सेल कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर द गैंट चार्ट। आप इस तरह से एक्टिविटीज को लाइए, कौन सी काम कब शुरू होगा, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे एंड टास्क, एंड अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे ये चेंज आ जाएगा। तो
बिल्कुल मुश्किल नहीं है साहब, मैंने एक वीडियो के थ्रू इसे बनाना सीखा और दैट यू कैन डू दिस। एंड जब इस तरह की हॉबीज आप लेके चलेंगे, प्लीज लिटिल बिट रेडी फॉर अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। डाउन विद लोअर बैक पेन ज्यादा हो जाता है कई बार, लेकिन नो इशू, चीजें आगे बढ़ेंगी सब। पोटेंशियल चैलेंजेस देखिए क्या हो सकते हैं सब रिसर्च में, दैट यू नीड टू वेरी केयरफुल। फंडिंग एजेंसीज आपको फंड्स नहीं दे पाती हैं, फेज्ड अप्रोच में देंगी, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग कैसे रहेगी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। इम्पैक्ट क्या रहेगा रिसर्च का, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट आपकी रिसर्च का क्या रहेगा। ये सारी चीजें आपकी डिसर्टेशन का या थीसिस का पार्ट रहेंगी, तो इट विल बी द वंडरफुल रिसर्च। कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ेगा, कैरियर एंड प्रोफेशनल इम्पैक्ट होगा, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इम्पैक्ट रहेगा, एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बात आती है, तो relevant stakeholders and consider their perspective, how to manage them, how to address their issues. To address these challenges, researchers should proactively plan, seek advice from mentors or colleagues, and be prepared to adapt their strategies as needed. So research is a continuous process. पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन होना चाहिए साहब। ये आपकी अलमीरा का खूबसूरती या लाइब्रेरी की खूबसूरती ना बने। ये चीजें आप जो भी काम करें, आप ओपन एक्सेस अलाउ करें, आपके काम को रिव्यू करें, आपको लोग। वन ऑफ द टेस्ट फ्रेंड आई डेवलप्ड ऑन ग्रेटिट्यूड, एक्नॉलेज काइंडनेस विद थैंक्स। और मैंने ट्रस्ट में इस एस्पेक्ट को, इसको अपना जिंदगी का एक हिस्सा बनाया। और a large number of कि bondings are there, and really when you are showing your gratitude, and the receiver and giver both are happy. तो रिसर्च गेट पर मेरा सबसे ज्यादा स्कोर जो आ रहा है उसी स्केल से आ रहा है। ओवर द ग्लोब द पर्सन्स आर रिक्वेस्टिंग, सर प्लीज अलाउ अस टू यूज योर स्केल, हाउ टू मेजर द ग्रेटिट्यूड। सो पब्लिकेशन होना चाहिए, लोगों को पता चले कि आप कर रहे हैं, और यू मस्ट बी रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म ऑल्सो। जब आप काम करेंगे तो लोग तो बोलेंगे सब आपके बारे में, ये तो सिस्टम है। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप चीजों को करें, कम्युनिटी एंगेजमेंट, मीडिया पर लाएं, मल्टीमीडिया पर लाएं, एंड बिल्ड नेटवर्क, साइटेशन मैनेजमेंट, एथिकल गाइडलाइंस, एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज आर इन इंडिया। ICSSR इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है, सारी थीसिस वहां अपलोड होती हैं, और बहुत सारे वहां पे कंट्रीब्यूशन और लिंकेजेस होते हैं दैट यू कैन गो फॉर। शोध गंगा इज बहुत ही वंडरफुल रिपोजिटरी है, जहाँ पे सारी रिसर्च आपको मिल जाएगी। अदर रिपोजिटरीज को लेके एक रिसर्च आर्टिकल है, कभी वक्त मिले तो इंस्टीट्यूशनल देखिए, इसको आप स्टडी करिएगा। और ये दत्ता रे साहब ने पब्लिश किया, इट इज अ वंडरफुल आर्टिकल जो मैंने देखा है, और आई प्लान टू डिस्कस विद यू। बहुत ही वंडरफुल इन्होंने रिसर्च की है। जैसे ये है देखिए, IR इंडिया इंस्टीट्यूशनल, वो किस तरह से किस किन चीजों को आपकी को स्टोरेज करते हैं, और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं टू यूज इट फॉर योर रिसर्च। ये वंडरफुल रिसर्च आर्टिकल है जो कि मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर विद यू, एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द क्लास लास्ट में देखिए जो कीवर्ड था, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप कितने अचीव कर पाए, क्वेश्चंस का क्या था, स्कोप का क्या रहा, लिटरेचर रिव्यू, डेटा अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा, देन यू नीड टू जस्टिफाई। इससे फ्यूचर रिसर्चर को देखिए एक डायरेक्शन मिलेगा कि जो रिसर्च इस टॉपिक पर हुई हैं उनके लिमिटेशंस, स्ट्रेंथ क्या थे, देन वी नीड टू वर्क ऑन इट। ये सारी चीजें
ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एंड स्पेसिफिक फिजिबिलिटीज और ये एआई के कुछ और मैंने एप्लीकेशंस आपको दिए हैं कि अगर रिसर्च क्वेश्चंस को रिफाइन करना है तो देखिए ये एआई एप्लीकेशन है, मैंने कोहेर आपसे डिस्कस किया जो कि रिसर्च क्वेश्चंस स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग को अलाउ करता है। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के लिए सर्वे मंकी एंड जेमोवो मैंने किया। टेबलियो यू कैन गो फॉर द एनालिसिस एंड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए क्विल बोर्ड। देखिए हम बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं, रीजन बीइंग दैट हमारी बैकग्राउंड कुछ ऐसी होती है, तो टू करेक्ट द इंग्लिश ग्रामर एंड सो ऑन इट कैन हेल्प यू एंड ग्रामरली एंड प्रेजेंटेशन क्रिएशन बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। तो सर इसमें 1 मिनट का वक्त और दें अगर शायद अभी हैं 2 मिनट। एक 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 एप्लीकेशन और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, आई परहैप्स स्किप्ड। चैट पीडीएफ करके देखिए एक एप्लीकेशन और बहुत अच्छी बनी है एआई की, आप इसको देखिए, प्लान करिए सब, इसको यूज करिए और मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाता हूँ, देखता हूँ सब। ड्रॉप हियर हम करते हैं सब, अपना पीडीएफ यहाँ पे लाते हैं और उससे रिलेटेड देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पूछिए एंड यू नीड नॉट टू स्टडी और गो थ्रू द कंप्लीट आर्टिकल। आप बस उसको आप अपलोड कर दीजिए एंड अपलोड करने के बाद देन आस्क द क्वेश्चंस अबाउट इट। अब देखिए फाइन, अब ये आ गया आपको अपलोड, ये अपलोड हो गया। कंटिन्यू एज दिस, ये मेरा पीडीएफ आ गया। अब देखिए आस्क ए क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चंस भी इसने दिए हैं इसने कि व्हाट मेजर्स ऑफ वर एग्जामिन्ड। अब मैं अगर इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूं तो नाउ सी द रिजल्ट, मैंने ओके किया। पूरे आर्टिकल को स्कैन करने के बाद उसने बता दिया दिस स्टडी वाज कंडक्टेड बाय मी एंड ब्रजभूषण साहब और लिटरेलिटी के 4 मेजर्स हमने यूज किए थे, हैंडेडनेस, फुटेडनेस, आइडनेस एंड ईयर्डनेस। देखिए वंडरफुल। और क्वेश्चंस आप देखिए, ओके ये क्वेश्चंस तो वही मैं व्हाट वाज द sample size in this study? I need not to go through number of pages. अब देखिए ये सारी चीजें मुझे बता देगा। 80 drivers from the Indian Railways. The drivers had an average this. They were selected from 4 different zones of the Indian Railways, and the primary language of the subject was written from left to right. Okay. Main findings of the study. देखिए साहब फाइंडिंग्स आपके सामने आ गई हैं। ऑथर्स ऑफ दिस स्टडी, देखिए साहब ब्रजभूषण साहब आईआईटी कानपुर से थे एंड मैं आई वाज वर्किंग इन द R&D ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवेज, मेरे बारे में बता दिया। रिसर्च डिजाइन क्या थी सर? देखिए कंप्लीट पोस्टमार्टम ऑफ द रिसर्च आर्टिकल विद इन, और इस चीज को आप कॉपी करिए और पेस्ट कर लीजिए जहां पे चाहें। So this is all about from my side, sir. My gratitude, and please allow me to stop the presentation now. It's time to speak you.
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर। सर ये पूरा प्रेजेंटेशन पीडीएफ थैंक यू थैंक यू सर। मैंने वादा किया कितने था मिल सर। जाएगा? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत थैंक यू सर। थैंक यू so much, sir. थैंक यू थैंक यू सो मच। पेन है सब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाउ क्वेश्चंस या प्लीज कुछ तो बोलिए। सर ये प्रेजेंटेशन सर आपने पूरा दिया है सर, ये हमें मिल जाएगा सर? ये आएगा मैडम, बोले गूगल सर। क्लासरूम पे आता है मैडम Sir, चैनल। हाँ sir, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है सर। regarding the availability of certain papers that are based off paid databases, is there any software that can make it available? थैंक यू सर। Sir, can you hear me? धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर दो एसपीसीस में जो इक्वेशन सर हम लिखते हैं थैंक यू सर। तो उसको सर हम एआई यूज करके कर सकते हैं क्या? दोबारा रिपीट करें मैम क्वेश्चन। सर जैमोवी या एसपीसीस, आपने जैसे बताया कि जैमोवी इज बेटर देन एसपीसीस, तो उसको यूज एसपीसीस रिग्रेशन एनालिसिस जो हम करते हैं सर, उसमें उससे सर जो इक्वेशंस हम निकालते हैं उन इक्वेशंस को सर एआई बेस्ड प्रेडिक्टेबिलिटी उसकी सर हम कर सकते हैं क्या? मुझे ऐसा क्वेश्चन सर। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कोशिश नहीं की लेकिन आई हैव अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सर कैन वी गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर? Sir, you are on mute, sir. As a teacher, my submission to you कि we need to be connected and we are connected. बस इस वक्त शायद साउंड कम आ रही है। बताएं सर कुछ। Paid publications के उनको अवेल करने के लिए कोई एआई वेबसाइट है? सर आपके प्रेजेंटेशन की जो अगर इसकी पीडीएफ या पीपीटी जो मिल जाती है। मैं शाम तक सर आप मजहर साहब को शेयर कर दूंगा, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। How can we contact you? Sir, how can we contact you? Connected. We belongs to same family. Thank you, sir. Expectations. सर बस मौका मिला आपके साथ नॉलेज शेयर करने का। बताएं सर, बताएं, कंक्लूड करें सर। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ एप्लीकेशंस आप बताए हैं वो हिंदी के रिसर्च स्कॉलर को भी मदद करेगा क्या सर? यस सर, बिल्कुल करेगा। देखिए वक्त मिला नहीं, वरना हिंदी में आप प्रॉम्प्ट टाइप करिए, उर्दू में टाइप करिए, किसी भी लैंग्वेज में टाइप करिए, ये आपको रेस्पॉन्स करेगा। जी ओके सर। सर जो आजकल बहुत सारे मतलब सेंटेंसेस सुनाई देते हैं, एआई बेस्ड मोबाइल कैमरा, एआई बेस्ड वीडियो कैमरा जैसे एग्जांपल सर, तो ये सर कैसे हैं सर? मतलब ये एआई पर मतलब किस तरह से सर बेस्ड है सर? ये तो मतलब एआई तो हम एक तरह से थ्योरेटिकल देख रहे हैं ना सर, तो ये कैमरा में या कि जैसे इन सब एग्जांपल्स में कैसे सर वो सूट आउट हो रहा है? देखिए ये डोमेन तो हार्डवेयर रिलेटेड है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है there is a need to move slow with the developed technology. लेकिन जब इस तरह का हार्डवेयर बनता है तो डेफिनेटली उस पर रिसर्च बहुत डिटेल्ड होती है, तो मुझे नहीं लगता कुछ नुकसान होगा, लेकिन बेटर टू मूव स्लो एज फार एज द हार्डवेयर पार्ट इज कंसर्न। सॉफ्टवेयर दिस टेक्स्ट को या सॉफ्टवेयर को, अपना रिसर्च आर्टिकल को हम रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर का थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है मैडम। हेलो सर। सर पैराफ्रेज करना सर मैं कल कर रही थी पर हो नहीं पा रहा था। पैराफ्रेजर क्विल बोर्ड में करिए। सर
क्विक बोर्ड पे ही क्विल कर बिट, क्विल बिट को यूज करिए सब। बहुत ही देखिए, मैं अगर आपके सामने सर मेरा जो रिसर्च है सर वो रिग्रेशन एनालिसिस एक पर भी मिनट पहले फोकस्ड है। तो सर मैं इक्वेशंस सर लिखने में दिक्कत होती है सर। इक्वेशंस को कैसे सर? देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ। अगर चेक द क्वेश्चंस, जो मैंने क्वेश्चंस शुरू में लिखे थे। अब देखिए, यही क्वेश्चन है। See, paraphrasing is there. और सर, देखिए, सर स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रही। अच्छा स्क्रीन, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा अब देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। सब चीजें हैं सर, यू कैन ट्राई इट। So please allow me, I have a class at 10:45 in the department, and really you have been very nice participants, and see you. Thank you, sir. Thank you. Thank you sir. Thanks a lot sir. Thank you very much. All the best, Thank you, sir. sir. Thank you, थैंक sir. यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much, Thank sir. Nice session. Thank you sir. Stay blessed, sir. Thank you so much sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. Take care, sir. Bye. Thank you, sir. 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 Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.